Shiv, I want to start with you because the sense is OTT is a young medium, and you go and do a film on a 1984 gas tragedy, which most of this audience was not even born then. No was I. You were not born in 1984. So how did you choose this particular story to tell the story of the Bhopal gas disaster? I check. Yeah. I'm going to ask all of you to keep a little silent so that the audio can go right till the end. बस इतनी दरखास्त है. When we're talking about this subject, we realize that we don't talk about this incident enough. And the Bhopal gas leak is one of the darkest incidents in modern Indian history. And we thought that, stories make their way to the hearts of the audience only when they're compelling and when they have a ray of hope in them, when they're about courage, when they're about the human spirit. So we thought if we could speak about the darkest night in Indian history through a lens of hope, that would be the best way to portray this dark tragedy to the audience, and that's the reason we took this up, because there's a whole generation out there, including mine, who didn't know anything about this. Like, until I started making the series, I did not know the far and wide extent and the depth of what had happened. And I thought it was very interesting for something to be taken to the audience in this fashion. के आप और मैं शायद इस स्टेज पे वो दो व्यक्ति है जिनका जन्म 84 के पहले हुआ है. मैं तो बहुत छोटा था भाई उस वक्त. नहीं बिल्कुल नहीं. पर 84 एक ऐसा साल था, 31 अक्टूबर 84 को इंदिरा गांधी की मौत होती है, उन्हें असैसिनेट किया जाता है. 1 तारीख से सिखों के खिलाफ इसी दिल्ली में दंगे होते हैं और 3 दिसंबर को 84 होता है, भोपाल गैस लीक होता है. It's a year like no other. Your sense when you were doing this film, did it take you back कि 84 का साल कैसा था, किस तरह से मैं उसे पोर्ट्रे करूंगा? You're not doing a contemporary film. You're doing a film about something that happened in 1984. How did you approach it? No, in 1984 I was not very aware, like most of the youth are aware today. We didn't have so many news channels, we didn't have so much of information. नहीं कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं थी, कोई दूरदर्शन नहीं था, कुछ नहीं था. 84 के टाइम पे आप जानिए, there was no breaking news. तो भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में तब जाना जब मैंने पहली फिल्म की थी भोपाल एक्सप्रेस 97-98 में, तब उसकी जानकारी मिली. लेकिन द यूनिक पार्ट अबाउट दिस इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द रेलवे मैन इन अ ट्रेजेडी लाइक दैट, जिसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी. और मैं मानता हूं कि ऐसी संस्था है रेलवेज जो शायद सबसे बड़ी संस्था है हमारे देश के. उसकी नेटवर्किंग बहुत बड़ी है और उसके कर्मचारी बहुत सारे हैं, एम्प्लॉइज. तो एक तरह से हमारी तरफ से एक होमेज है उन रेलवे कर्मचारियों के लिए जिन्होंने बहुत कुछ किया उस रात को. तो ये मेरे लिए नया था. आप लोग जानिएगा. आप लोग में से कितने ने देखा है? रेलवे में देख लिया है? कम लोगों हैं. जिन लोगों ने नहीं देखा है प्लीज जाके देखिएगा. ठीक है, थैंक यू. आयुष, ये जो कहानी है, रेलवे मैन जो कहानी है, ये कितनी आपकी इमेजिनेशन फिक्शन है, कितना नॉन फिक्शन है? क्योंकि गैस ट्रेजेडी हुई, लेकिन ये जो कैरेक्टर्स आपने किए हैं, ये कैरेक्टर्स कितने इमेजिनेशन के हैं, कितने आपने कहा कि मुझे एक ह्यूमन स्टोरी करनी है और उस डायरेक्शन में आपने किया. आपने ये नहीं कहा कि आई एम डूइंग अ नॉन फिक्शन स्टोरी. So where did the idea of doing it around railwaymen come from? Thank you sir for having us here. KK sir अपने इंटरव्यूज में एक बहुत बढ़िया बात बोलते हैं कि every story is a fictional story. Unless you are doing a documentary which is a non-fiction out and out, every story is part fictional. भोपाल गैस लीक के बारे में like everyone I'd heard in my childhood, लेकिन that didn't become a story until we got the angle of the railwaymen. Yeah. And आप अगर चिल्लाएंगे तो नहीं होगा भाई साहब, बताइए. So गाइस सुन लिया. थैंक यू. सुनिए हिंदी में बोलने को कह रहे हैं आप. सुन लिया. अब सुनिए एक बार वो क्या कह रहे हैं.
सो जब हमने कहानी पे रिसर्च किया, व्हाट वी फाउंड आउट, जो हमें पता चला वो ये था कि भोपाल 1984 में जब ये हादसा हुआ, उसके अगले दिन सुबह से ट्रेन चल रही थी। वो ऐसा वक्त था जहां पर अगर ट्रेन रुकती थी ट्रैक पे तो 10-10, 12-12 घंटे रुकी रहती थी। ऐसे वक्त में एक ऐसा स्टेशन अगले दिन चालू करना जहां पर रात को 20-25 लोग मरे हैं, स्टेशन के मरे हैं, वहां पर आसान बात नहीं थी। दैट्स व्हाट गॉट अस थिंकिंग कि क्या, किस रेलवे के पर्सनल ने क्या क्या किया उस रात को, किसने ट्रैक्स क्लियर किए, कौन लोको पायलट था, कौन स्टेशन इंचार्ज था। और वहां से जब ये रेलवेज की कहानी बनी और होप की कहानी बनी, आई थिंक दैट इज, वहां पर उसने हमें कंपेल किया कि यार ये कहानी बतानी चाहिए। अच्छा, आप अगर मुन्ना भैया कहेंगे, इसका मतलब है एक आपने रेलवे मैन नहीं देखी है, क्योंकि अगर आप रेलवे मैन देखते तो आप जानते। दिव्येंदु, अब देखिए परेशानी ये है कि जब आप एक हिट सीरीज मिर्जापुर जैसी करते हैं, एक कैरेक्टर बनता है मुन्ना का, तब आप जब एक नई पिक्चर करते हैं जिसमें आपका कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू मी वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स, क्योंकि वहां की मॉरल डायलेमा जो आपके सामने है, तो आप किस तरह से, हाउ डू यू गिव अप वन कैरेक्टर टू एंटर अनदर रोल, कि अभी भी अगर लोग आपको मुन्ना से जानेंगे, सो हाउ डू यू बिकम योर नेक्स्ट कैरेक्टर? सबसे पहले आप जितने भी लोग हैं सबको थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। आप बहुत प्यार दे रहे हैं, थैंक यू, थैंक यू। सर, आपने जो बात पूछी वो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं एज एन एक्टर जब कोई एक कैरेक्टर करता हूं तो उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं सोच सकता। ये लोगों का प्यार है जो इतना देते हैं, लेकिन जितना प्यार आपने मुन्ना को दिया है, प्लीज बलवंत को भी दीजिए, रेलवे मैन को दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वेब सीरीज जो हम लोगों ने बनाई है, क्योंकि ये भोपाल गैस ट्रेजेडी पे है और कई लोग नहीं जानते इसके बारे में। और उससे बड़ी बात यह है कि रेलवेज का जो कंट्रीब्यूशन है, जो शायद हमारे देश की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, हम सबने ट्रेन से कभी ना कभी ट्रैवल किया है, हमारी सबकी यादें जुड़ी हुई हैं। उन लोगों ने अपनी जान की परवाह बिना किए कितने हजारों लाखों लोगों को बचाया, उसके बारे में रेलवे मैन है। तो प्लीज इसको भी अपना प्यार दीजिए। 50% भी देंगे तो चलेगा, लेकिन प्लीज दीजिए, प्लीज देखिए। नहीं, आप पर ये सवाल उठता है, प्यार तो देंगे, लेकिन क्या जब भी आप कहीं जाते हैं आपको मुन्ना के रोल से जानेंगे? इज दैट अ स्ट्रेंथ और अ वीकनेस? आई डोंट नो सर, मैं उसके बारे में नहीं सोचता इतना। मैंने अपना किरदार निभा दिया। लोगों तक जो पहुंचेगा वो दिव्येंदु पहुंच रहा है, मुन्ना पहुंच रहा है, उससे पहले लिक्विड पहुंच रहा है, वो उनके रिसीव करने पर है। मैंने दे दिया, वो कितनी आगे तक पहुंचता है, आई डोंट थिंक हमें उसके बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। I don't know how many of you know Babil. I don't know how many of you know Babil. Babil, you know, मैं इतने फिल्मों के बारे में जानता नहीं। When I first saw it, I did not know you were Irfan's son. और ये कहा जाता है कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म बहुत होती है। I saw in your role someone who has proved कि वाकई एक्टिंग टैलेंट खून में हो सकती है। सर, मैं इतने You have done what your father would be very proud of. It's an outstanding character that you have played. सर, यानी आपने प्रूव कर दिया है कि खून में है। सर मैं आपको सच बताऊं, मैं इतना ग्रे एरिया ऑफ नेपोटिज्म में हूं। मैं इरफान का बेटा हूं, मैं कहीं जाता हूं तो बोलता है अच्छा तू इरफान का बेटा है, जा ऑडिशन दे। ऐसा होता है सर, मेरे को ऐसे कोई आके कुछ देता नहीं, बोलता अरे तू तो एक्टर का बेटा है, जा ऑडिशन दे। तो मेरे को तो ऑडिशन देना पड़ता है सर। पर वो प्रेशर है या इज इट अ बर्डन फॉर यू और इज इट अ ब्लेसिंग? नो, एब्सोल्युटली नॉट सर। आई थिंक इफ आई फील कि मैंने अपना स्पॉट अर्न नहीं किया है तो मैं सेट पे जाके कॉन्फिडेंट होऊंगा ही नहीं। यू नो, ये अलग बात थी कि शिव ने जब मुझे अप्रोच किया तो उसने मेरे अंदर कुछ देखा और उसके सेल्फ बिलीफ ने मुझे मोटिवेशन दिया। बट इसके अलावा मैं बहुत ऑडिशन देता रहता हूँ, फेल भी होता रहता हूँ, और उससे जब उठ के आता हूँ तो मेरे अंदर एक सेल्फ बिलीफ आता है और वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और बिना ऑडिशन प्रोसेस के मेरे अंदर वो आएगा नहीं।
But when your father was around, would you audition in front of him? No, Would you sir. learn from him? Did you subconsciously or consciously learn from your father? सर इट्स इनएविटेबल टू लर्न यू नो ऑफ कोर्स जब आप किसी के साथ इतना वक्त बिताते हो तो आप सीखते हो उनसे और मैंने जब इस सेट पे वक्त बिताया तो इवन इफ मुझे कोई डायरेक्टली नहीं सिखा रहा था मैं सीख रहा था यू नो के सर को देख के मैं सीख रहा था देवेंद्र भाई को देख के मैं सीख रहा था मैडी सर को देख के मैं सीख रहा था शिव को देख के मैं सीख रहा था आयुष को देख के मैं सीख रहा था मैं सबको देख के सीख रहा था मुझे लगता है आदमी की खासियत ये होती है इंसान की खासियत ये होती है कि वो हर वक्त सीख रहा होता है आपको पता नहीं होता पर आप सीख रहे होते हो शिव, आपने ये कास्टिंग कैसे की? Because one of the highlights I thought of your series is the characters you have created. Web series are not often able to create such strong characters, each of whom, remains in your mind even after you've seen the series. How did you choose these? How did you choose a Munna? How did you choose Babil? How did you choose a KK? How did you choose Madhavan? Sir, सर मत बोलना यार. देखिए कास्टिंग के लिए ना हमें बहुत तारीफ मिल रही है एंड डेफिनेटली वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है इस शो का और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो द टैलेंट दैट सिटिंग ओवर हियर वो देखते हैं वो स्क्रिप्ट में कितना दम है एंड आई थिंक इट ऑल बॉइल्स डाउन टू दैट बिकॉज टू गेट these kind of people to agree to do parts in a show in an ensemble cast and realize that each part adds value to that to the series. I think they see the power in the entire story. So I think when we approach each one of them, सबने पहले ही गो में हाँ बोल दिया and that was the most important thing because उनको सबको लगा कि ये कहानी जो है रेलवे मैन की ये जानी चाहिए लोगों तक. डेब्यूटेंट डायरेक्टर के साथ के आपने तुरंत हाँ बोल दी और 4 पार्ट सीरीज जब आप बनाते हो इज इट लाइक मेकिंग 4 मूवीज? ये ओटीटी का कमाल है. जब आप 4 पार्ट सीरीज बनाते हो ईच ऑलमोस्ट 1 आवर, इज इट लाइक मेकिंग 4 मूवीज? व्हाट मेड यू डिसाइड नहीं शिव मैं आपके साथ काम करूंगा? पहले जब YRF से अप्रोच हुआ था तो मुझे लगा कि शायद इस प्रकार के टॉपिक के लिए हाउ YRF इज, उनकी लेगेसी क्या है, संकोच में था, मना करने के कगार पे था. फिर मुझे किसी ने स्क्रिप्ट भेज दी तो वो स्क्रिप्ट बहुत ही उम्दा थी और मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया उसमें. तो मुझे लगा इसमें ढंढड़ान जो है वो कम हो जाएगा. और फिर शिव से मिला, उस वक्त वो क्लीन शेवन भी थे, तो मैंने कहा कि यार ये बच्चा है, ये कैसे हैंडल करेगा. फिर बातचीत हुई, बातचीत होने के बाद मुझे समझ में आया कि इसका वेवलेंथ बहुत ही ठोस है और अच्छा काम करेंगे. और उस विश्वास के साथ मैं शूटिंग पे गया. पहले 2 दिन में मुझे यकीन हो गया कि ये बहुत अच्छा सीरीज बनेगा. हमारे यहाँ एक फिल्म की एक परंपरा बन गई है कि हमने स्टीरियोटाइप कैरेक्टर्स किए हैं. इस फिल्म में जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, जो रेलवे मैन है, उसका नाम है इफ्तिकार सिद्दीकी. बहुत कम लोग जानते होंगे आज की भोपाल गैस ट्रेजेडी में मैक्सिमम डेथ्स हमारे मुस्लिम भाइयों के हुए और मैक्सिमम लोगों को बचाया भी मुस्लिम भाइयों ने. और आप ये भी जानिए कि इस फिल्म में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सब प्लॉट है. एक मिनट देखिए, जिनको यहाँ सुनने के लिए नहीं आए हैं, बहुत कुछ आप और सुन सकते हैं. और मैं आपसे सबसे दरख्वास्त करूंगा, अगर आप आज तक के इस साहित्य सम्मेलन में आए, आप सुनने आइए, अपनी आवाज मत रखिए वहां. इस फिल्म की दूसरी सब प्लॉट है, एक महिला है जिसको, वो सिख महिला है, 1984 एंटी सिख राइट्स के बैकड्रॉप में किया गया है और उसे किस तरह से लोग उस ट्रेन में मारने को आते हैं. इस जनरेशन को यह पता होना चाहिए कि किस तरह के दंगे इसी शहर में हुए, क्योंकि आप कभी-कभी आपकी जो इतिहास है आपको लगता है केवल पिछले 5-6 सालों में हुआ है इस देश का. इस देश में बहुत कुछ और भी हुआ है. एंड आई वांट टू आस्क यू दैट Ayush, when you chose these themes, your main 2 protagonists, both the role that Babil plays and KK plays are Indian Muslims. You have a fantastic character in Mandira Bedi, जो एक सिख महिला है, अपने बच्चे के साथ बचाने पर लगी है जहां लोग उसे टारगेट कर रहे हैं. Did you consciously choose these sub themes to bring out that period of 1984 for this young audience
जिनकी इतिहास कभी 2014 के बाद ही शुरू होती है? ऑनेस्टली सर, वंस वी हैड डिसाइडेड कि ये रेलवे मैन की कहानी है, देन द सबप्लॉट्स बिकेम इजी टू गैदर. सो जो एक गोरखपुर एक्सप्रेस आ रही वहां पर सीख दिखाना इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कि हमें वो दिखाना है क्योंकि वो हुआ है. हमें वो इसलिए दिखाना है क्योंकि हमें रेलवेज का जो एक ट्रेन आ रही है उससे हमें ये नहीं कहना है कि 1000 लोग हैं उसमें और वो यहाँ आएंगे तो मर जाएंगे. हमें उन 1000 लोगों में इन्वेस्ट करना है. तो जो नैरेटिव है, हम एक नंबर में इन्वेस्ट नहीं करते हैं कभी भी. तो इट्स नॉट कि 1000 लोग आएंगे मर जाएंगे, ऑडियंस कहेगी यार कौन है वो 1000 लोग. सो वहां पर एक शाजिया का होना, राजवीर का होना, एक गार्ड का होना बहुत जरूरी हो जाता है, सो दैट ऑडियंस इन्वेस्ट हो उसमें. तो you were focusing on the human angle because it could have easily turned political. लोग कहते हैं ये राजनीतिक पिक्चर है. आपकी खूबी है कि आपने इसे ह्यूमन स्टोरी बनाया. इसका वो जो ट्रेन की जो जर्नी की बात हो रही है, उसको दिखाने का मकसद था एक दूसरा पहलू दिखाना रेलवेज का, कि सिर्फ रेलवेज के जो लोग हैं जो उस रात भोपाल में ही मदद नहीं कर रहे थे. एक रेलवे का कर्मचारी अपनी कैपेसिटी में हमेशा सर्विस में लगा रहता है. अब चाहे वो भोपाल की बात हो, 84 के दंगों की बात हो, वहां पे भी जो एक कर्मचारी है वो उस औरत और उस बच्ची को बचाने के लिए लगा हुआ है. तो एक बस दूसरा पहलू दिखाने के लिए कि वहां भी रेलवेज उतना ही एक्टिवली काम कर रहा है. Hence, yeah. But you know, Divyendu, your character is very interesting क्योंकि आप आते हो, you are who's going to rob the station and eventually gets caught up in this entire gas tragedy. When you play a role like that, do you completely, do you relate to it? How do you effectively play a role unless you completely get involved in it? I tell you, sir, honestly, when I read the script, it wasn't one of the most author-backed roles written. But what I realized reading the part is that the script needed this character. And why do I say this? Because when you say all these other characters, they're very righteous. You know, they have this certain call of duty that, you know, they are answering to. You know, they were employed by the railways और वो उसके तहत चलते हुए अपना काम कर रहे हैं. ये एक अकेला बलवंत या एक्सप्रेस बैंडिट जिसको आप बोल रहे हैं, एक अकेला एक ऐसा इंसान है जो कहीं ना कहीं एक लेमैन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां पे उसका कर्तव्य नहीं है लोगों की जान बचाना. अपनी भी जान बचाना उतना ही जरूरी है जितना वो कहते हैं ना, दूसरों का मास्क लगाने से पहले अपना खुद मास्क लगा लीजिए, वो वाली बात है. लेकिन कैसे, चाहे आपके कैरेक्टर में ग्रे चीजें भी हों, लेकिन कोई ऐसी अगर कैलामिटी आती है या कोई ऐसी बड़ी चीज आती है, आप शायद अपने आप को भूल के उसमें जुड़ जाते हैं और आपकी ह्यूमैनिटी बाहर निकलती है. Having said that, we were very aware, let's not change the DNA of the character. He was there, he was helping others, everything. But in his mind, he is very, very clear that at the end of the day, I'm here for the money. मैं वो भी चुराऊंगा. वो एंड में चुराता भी है, लेकिन जब ये पता चलता है कि वो चुराने के लिए स्टेशन मास्टर का नाम आ रहा है, वहां पे अगेन यू सी द ह्यूमन साइड ऑफ हिम एंड ही सेज नहीं, इसको वापस रख देता हूं. सो फॉर मी, एक ऐसा इंसान जिसके इतने ज्यादा डिफरेंट फ्लेवर्स थे, इतने ज्यादा डिफरेंट शेड्स थे, बहुत मजेदार था करना. ही कम्स अप विद अ लॉट ऑफ कॉमिक रिलीफ एज वेल, वेयर अगेन वी वर वेरी अवेयर ऑफ द फैक्ट कि ये कॉमिक रिलीफ जो है या कॉमेडी जो है, ये सीन की इंटेंसिटी पे हावी नहीं होना चाहिए. तो वो उतनी मात्रा में आना चाहिए जहां पे आपको थोड़ा रिलीव करे, लेकिन फिर कहानी आगे बढ़े. सो इट वाज इंटरेस्टिंग फॉर मी टू हैव सो मेनी फैसेट्स इन अ सेम कैरेक्टर.